When we have a child, we have a lot of dreams for the children. The parents, the teachers who are responsible for shaping the career of the child. Today we are in the flood of information. We can just navigate them to choose the right path by equipping them with the right knowledge, and you can guide the students appropriately at the appropriate time. They reach to the right direction. All you have to do is explain the child about what are their strengths, what are the potential 5 areas where the student can get into, and ask him to carve plan A, plan B, Hi, and thank you for tuning in. Career positivity, choosing your career, dream career. When it comes to our children, we think of making the right step, going to the micro level so that they get the best, correct? Today, we have an eminent guest with us who's going to give a lot of highlights. This is the right time to have her on our platform, Mrs. Sunanda Rao. She's an eminent HR leader, diversified and helping people, students, to upgrade, enhance and choose the right career for themselves. Let's welcome Mrs. Sunanda Rao with us. Hi Sunanda. Hi Surbhi, how are you? I've been good, Sunanda. Thank you so much. Thank you Surbhi for calling me here, and it's really a pleasure to be with you, and I'm sure we are going to enhance our discussion and we're going to discuss the things which are really relevant for the students and the parents at this moment of time. Exactly. When we have a child, we have a lot of dreams for the children. Once he's in the womb, we start dreaming of how, what, where. But gradually when we start growing, is it only the parents, the teachers who are responsible for shaping the career of the child? No, it's only the student and the child who is responsible for shaping their career. Oh, wonderful. So how can parents and consultants and mentors and trainers like you can help them? We can just navigate them to choose the right path by equipping them with the right knowledge, because today we are in the flood of information where the students, where the child gets overwhelming with a simple prompt in ChatGPT, Bard or Gemini, and they get immense number of knowledge things. Now when so much of knowledge comes, which is the right one for them, the choice, making of the choice and understanding what are their own strengths, this is where our role starts. As a parent, we have to ensure that we have to give the wings to their desires. There could be a student, like for example, I'll give you an example of my student Priya, who want to be a podcaster, because obviously today podcast is trending, and people get millions of views, and you can see Raj Grover, you can see there are many other small kids who are making their own YouTube channel and they're earning like anything along with their studies. So obviously Priya wanted to be a podcaster, whereas vis-a-vis her parents who are from the medical domain, they want her to take the NEET exams and go through the medical career. So they have put her into a NEET examination coaching center from class 9 so that she can prepare well. She was doing her homeschooling because they were very clear that she has to crack NEET only, and the teachers were very clear, since the parents were already having a medical background, this would be the right way to take the legacy to the next level. However, the child was creative. The child was having a artistic flavor of the things, and I'm talking to you in context of the Holland course. So when we see a person's personality, the personality was not a realistic one. It was more on an artistic, more on a social way. Now, enterprising. Now, how can you think that a student who is having these characteristics can get into a medical? Obviously, medicine requires a realistic and a conventional way of thinking, investigative way of traits. So these were the mismatches that have happened. And when student was getting a counseling done by me, she said, "Ma'am, I don't want to go into medicine career, but my father wants me that I should actually take the legacy to the next level." So that was a difficult point for me to actually share with the parents that let's not take her to the medicine line, and I have to see the interest part of the thing. So that's where I have navigated the child to get into the right path, and she tried to crack the NEET, but she couldn't. And the NEET competition is too huge. So
The second alternate path that she was having is doing the graduation and then to start with the podcasting. Obviously, she will not start the podcasting soon after the 12th class. She'll have to equip herself with the education line. So what I suggested is, take the parents' legacy to the next level. Instead of you becoming a doctor, why don't you become a podcaster who can podcast about the doctors? And for that, you need to know the medicine well. So in this way, now the student is creative and is actually taking the legacy of that to the next level by doing a BSc in generic, and she wants to do a specialization in the mass media so that she can be a podcaster. Wonderful. That adds volume. So Yes. our students who have just done their 10th and 12th, and especially professional parents, they really, envision that their children should become a clone to them or take the legacy ahead. These are some desired things or dreams what we have, which have not been we have not been able to fulfill, and we put them on our children. So that is my first question. It's just not the child who's responsible. It is the parents, the caretakers, the teachers, and people like you who've been guiding, mentoring these students. Correct? No, definitely not, Surbhi. Again, I'll reiterate what I was saying. It is the student, it is the child who has to carve their own path. Now, at times, yes, what you rightly said, the parents want to, put the unfulfilled desired, and they think of when I conceived, I actually conceived the moment I conceived, I decided on the name of my child, and of course, it was with the consent of my husband only. That's the reason the name has come the same name. However, you cannot predict what career the person should be taking. Like, for example, my husband is an interior designer and a Vastu consultant, right? And he does the exterior work also. My first choice of my son's career has come as an architecture. Now, in 2020, he cleared the JW2, and of course, we were waiting for the college to be allocated. That was the time when we have seen that Corona has hit. The domain of architecture would have dipped for a while until it would take up to the new level with the technologies. So the plan B was into cyber security. So I cannot work on this that yes, my husband is into the same line, so he should be coming into the architecture or the civil engineering line. The second line which was proposed to him was on the cyber security, and today I take really pride that he has done good in cyber security and is working with an eminent MNC in the cyber security domain. And to help it, External Affairs Minister Mr. Jaishankar, he posted something on NFSU, National Forensic Science University, which is not known to many of the people. This is a government university which is under the Ministry of Home Affairs, and which talks everything about forensics. And believe me, this is the only university into the forensics, which is the world's first university. And this is not known by many of the people, like the career counselor like me also. The only thing is that when you're vigilant about these things on the social media and you can guide the students appropriately at the appropriate time, they reach to the right direction. So who carved out this entire plan for your son? If not plan A, then he had a plan B. Was this aligned with his passion or his interest? Definitely, it is he who carved his path. The only thing as a parents that we have done is giving him a right education in the right colleges, and we asked him to craft his. See, the only thing what we can do when we are taking a kid to a career counselor, I myself is a career coach, so when I'm telling him, it has to be told to the kid that what are your strengths, which industries that you can work with, because the career occupational strengths comes with the industries where you can work, what kind of roles that you can do, and what is your strength that can be mapped to that. So all these comes with the help of a psychometric. All you have to do is explain the child about what are their strengths, what are the potential 5 areas where the student can get into, and ask him to carve plan A, plan B, plan C. Now plan A, plan B, plan C is required because supposingly you are traveling from Vikaspuri to Noida today, right? There are multiple ways that you can travel. You can travel by the outer ring road, you can travel by the interior.
towards the CP. Now Google will drive you to one place. However, it is your choice, right? You want to come from the outer ring road, either you want to come from the CP. Now, what are your choice factors? What are the decision making factors? Is you want to save the fuel, you want to save the commuting time. At the same time, you know that what is the best feasible way. For example, if you don't know how to drive, then you would like to take a metro, and you would see that what option of metro is making me a shorter route where I can come conveniently, I can get a seat in the metro, right? So you know that you cannot stand for a longer time, and then that's the reason why you're looking for a sitting route. Similarly, a kid knows what is their appetite of the studies. They know whether they can crack this exam, whether they can put 8 hours or 12 hours into the particular thing. So it is the student who knows already. The only thing as a parent that we do is we navigate. हम चैनल बाढ़ बनाते हैं उसके रास्ते में. ऐसी टीचर्स उनको इक्विप करते हैं नॉलेज से. करियर काउंसलर उनको नेविगेट करके चूज करने में हेल्प करते हैं. These are the 5 options. The choice of the first option, second option, third option is entirely with the child. पेरेंट्स कई बार हम लोग कूदने की कोशिश करते हैं इसको बताने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है पेरेंट्स हम एक बर्ड्स आई व्यू देखते हैं. हमने जिंदगी देखी हुई है, हमें स्ट्रगल्स मालूम है, लेकिन बच्चे आजकल स्मार्ट हैं. दे आर इन द वर्ल्ड ऑफ AI विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. दे बॉर्न विद द टेक्नोलॉजी. हमारे टाइम पे PCOs होते, राइट? अब मोबाइल्स होते हैं बच्चों के टाइम पे. हमारे यहाँ कभी ऑर्कुट होता था, आज के दिन में इंस्टाग्राम, X है. तो पीपल दे नो व्हाट हैज टू बी चोजन एंड दे नो व्हाट इज द ट्रेंड. और जब एक बच्चा अपना करियर खुद ओन करता है ना सुरभि, उसको मालूम होता है कि दिस इज माय चॉइस एंड आई हैव टू स्टैंड बाय इट. अगर आपने बोल दिया आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप बुझे मन से, मरे मन से करोगे. अगर आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो आपके ऊपर बच्चा आराम से बोल सकता है मैंने तो चॉइस नहीं की थी, आपने मुझे बोला, मैंने कर दिया. राइट, करेक्ट. Correct. That sounds very very wise now. But इस सारी study इतना सब gather करने के लिए, जैसे हम जब बच्चा पैदा होता है, we start planning for them. So this career counseling, coaching should start at very primitive stage in the school, like 8, 9. They should be known about the strengths they have. Should be a part of the school curriculum. Or the career coaches like you to visit school to give that awareness, create that knowledge to the students? Definitely. Today the schools are inviting the career counselors and they do the career guidance sessions. But more like क्या होता है ना सुरभि, आजकल जब schools career guidance session करते हैं, वो लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बुलाते हैं. और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी आती है? प्राइवेट आती है. उनका क्या काम होता है? टारगेट लेना बच्चों से. तो वो बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं कि ये वाला अच्छा कॉलेज है, ये वाला, तो बच्चा उस माइंडसेट के साथ रहता है. द राइट एज टू गेट अ करियर काउंसलिंग डन इज क्लास 9 से शुरू कर सकते हो, लेकिन that is not too early, neither anything is too late. Right. When you are striking out with the problem, आपके जिस टाइम पे सर में दर्द होगा ना, तभी आपको सैराडोन चाहिए. आप घर पे राके रख लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है. तो सिमिलरली जब बच्चे के पास प्रॉब्लम हो ना, पेरेंट्स को उसी टाइम पे करियर काउंसलर या करियर कोच के पास जाने की जरूरत है. ना कि आपने प्रेडिक्ट किया कि कोई और गया तो आपको जाना है. आपको जब मन करता है आप आइए. आप क्लास 9 में बच्चा है, यू वांट टू टेक अ इनिशिएटिव, यू कैन टेक दैट. बट बच्चे की चॉइसेस एज के हिसाब से चेंज हो जाती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, given an example of my son's friends who took the career counseling from me in the class 9, उन लोगों को पहले बता के रखते हैं कि ये चॉइस अभी आपका ना इन्फैचुएशन है इस पर्टिकुलर करियर के लिए. लाइकिंग एंड लव एज यू मैच्योर तब आपका डेवलप होता है. तो कई बार क्या होता है, बच्चा 10th में साइंस भी ले ले, हो सकता है 12th के बाद वो ह्यूमैनिटीज वाले करियर में जाने की कोशिश करेगा. करेक्ट, दैट्स राइट. तो मतलब, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मली पेरेंट्स का होता है कि जब पेट में दर्द, सर में दर्द होता है तो चाय दे देते हैं. तो हमारा एक जेनेरिक पेरेंट्स का एक साइकोलॉजी होता है कि भाई 2 चीज़ों से इवैल्यूएट किया कि ठीक है तुम इस कोचिंग में चले जाओ, अब तुम ये नहीं साइंस नहीं करोगे तो तुम ये तो कर ही लोगे. इज दिस द राइट अप्रोच? क्योंकि इसमें कहीं पर हम बच्चे की करियर डिजाइनिंग में बहुत सारे बैरियर्स और बहुत सारे गैप्स ले आते हैं. सिर्फ भी क्या होता है ना, मेनी ऑफ द पेरेंट्स दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स, और वो लोग, उनका भी एक नेटवर्क होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मी एज अ पेरेंट, यू एज अ पेरेंट, वी ऑल हैव अ नेटवर्क. व्हेन योर चाइल्ड इज इन क्लास 10, कुछ तो लोग आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं, कुछ आप गूगल करते हो, या कुछ आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हो, या किसी ने बोल दिया कि हाँ शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, गुप्ता जी की बेटी ये कर रही है, तो आप उनको फॉलो करने लगते हो. लेकिन कहाँ पेरेंट्स गलती करते हैं, बच्चे वो
जिसके लिए हम चाहते हैं ना, हम उसकी खुशी तो देख ही नहीं रहे क्या है। जैसे पेरेंट्स हैं, आई एम श्योर बहुत सारे फीमेल चाइल्ड के पेरेंट्स का दिल होता है कि हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी करा दे, इससे शादी करा दे। बच्चे का दिल भी तो कहीं लगा हो सकता है ना, वो हम फैक्टर ही नहीं करते। हम बच्चे की खुशी बच्चे को हटा के करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चाहिए। बच्चे को इंक्लूड करके, इंक्लूजन जब हम बात करते हैं ना, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इंक्लूजन की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, दैट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली फर्स्ट। अब बच्चे को डाइवर्स करियर के ऑप्शन दिखाइए एंड इंक्लूड देम इन टेकिंग द डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। इट कैन नॉट बी आप उनके ऊपर अपना डिसीजन थोप रहे हो। आप डॉक्टर नहीं बन पाए डजंट मीन कि आपके बच्चे को वो बन के वो दिखाना है, डॉक्टर नाम लिखना है बोल के। तो वो चीज़ एक ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। रही बात आपका जो क्वेश्चन है कि प्लानिंग कब से हम शुरू करें, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं। आजकल एवरीथिंग वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ आउटसोर्सिंग द थिंग्स, राइट। जब हम 10 मिनट्स का एम्बुलेंस बोल रहे हैं, 10 मिनट्स में फास्ट फूड की बात करें, every career counselor, अगर आप ढूंढेंगे career counselor near me, you can see that person who is near you, to whom you can go and guide them. But before taking the career counselor or selecting career counselor, you have to do certain Reiki so that it will help you to understand whether it is a genuine advice, it is a non-genuine advice. Agreed. So जो dynamics हैं career के बहुत diversify हो रहे हैं. So it's not just 5 limited things we think, it's a very wide horizon. जो career dynamics हैं उस पे क्या change आ रहा है, क्या हमें career choices सिर्फ current status के हिसाब से करनी चाहिए और we should have that 10-year perspective, और ये जो market trends आते हैं, industry trends आते हैं, उसको देखकर भी हमें we'll have to see, because career is one thing but money is very important. जब बच्चा एक करियर चूज करता है तो वो जरूर देखता है इसमें उसका मोनेटाइजेशन, उसका मॉनेटरी बेनिफिट क्या रहेगा, उसको क्या स्टेटस, एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। आई एम श्योर आपके पास जब बच्चे आते हैं वो सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप करियर डायनामिक्स में आज से 10 साल पहले और आज में क्या चेंज है? बहुत चीज़ें सुबह। पहले करियर डायनामिक्स में क्या होता था ना कि हम एक लिमिटेड ऑप्शंस को लेके चलते थे। अगर मैं किसी को पूछूं कि भी आप कितने करियर्स जानते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस बैठी है और हम देख रहे हैं कि इतने सारे करियर्स हैं, तो आपके पास डॉक्टर, मेडिसिन का आ जाएगा, नर्स का आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी का आएगा, मेडिसिन की लाइन में बी फार्मा आ सकता है, मैक्सिमम यही करियर है, या डेंटल का करियर आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग में जाए तो देयर आर प्लेथरा ऑफ इंजीनियरिंग करियर्स व्हिच आर देयर। अगर आप लॉयर में भी जाते हैं तो एक लॉयर होता है, फिर उसके बाद आप जुडिशरी में जा सकते हो, आप नॉर्मल एडवोकेट बन सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, या ड्यू डिलिजेंस है, वो रोल्स चेंज होते रहते हैं। नाउ वी आर टुडे सिटिंग इन 22,000 प्लस ऑक्यूपेशंस, प्लस with the help of the social media technology there are multiple more careers which have come. Now prior to the age where the Gen X and Gen Y was there, वहाँ तक क्या लिमिटेड थे स्कोप, क्योंकि आपको मालूम है ये चल रहा है, इतने कॉलेजेस हैं, इस कॉलेज में ये हो रहा है। लेकिन आजकल लिबरल एजुकेशन आ गया है, आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया है, यू नो अबाउट योर ओन फील्ड ऑफ पॉडकास्टिंग, राइट, जहाँ आपके इतने सारे OTT है, मीडिया का हो गया, आपके कितने ही सोशल वर्क के करियर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि आज के दिन में चॉइसेस बढ़ गई हैं, confusions भी बढ़ गए। 100%. Sunanda, I just picked up a very good point here. When it comes to career, that's profession where we look at radical things, practical, money, growth, status and everything. एक passion होता है. Just like the story you told, I also have somebody, parents are doctors, they wanted their kids to pursue. He wanted to do wildlife photography, but he did not do it. But yes, he simultaneously with medicine, he did wildlife photography as well. How can we blend careers and how is the young generation taking it? Alright, very valid question, Surabhi, because today, yes, as you rightly said, profession is for more on the money earning and passion is for ourselves. But the passion is which drives your career. Now, for example, as you are giving an example of somebody who is doing a wildlife photography along with the medicine as a profession. Now, what happens in a lifespan? We work for 80,000 to 90,000 hours. ठीक है, अब आप अगर अपना
करियर देखोगे आप इतने नंबर ऑफ घंटे के लिए आप काम करते हो, मतलब आपकी प्री करियर हो गया, मिड करियर हो गया, फिर पोस्ट करियर हो गया, कई बार आप रिटायरमेंट के बाद भी आप इनिंग्स लेते हो. Now what happens is when you have a passion of doing something, like for example, I'll give you my example. I have a passion of writing content. I'm good in content writing. I'm passionate about teaching, not teaching as a classroom teaching, but yes, I go to the B schools and I go to panel as a speaker in many of the panelists so that I can actually tell them. But my main passion lies in career counseling. How? Because whenever, as I've shared with you, I'm an HR professional. So there are talent acquisition, retention, and development. These are the three departments. Now, development is one of my core area, which I really love. Talent acquisition, I feel it's like a cakewalk because आप जिंदगी भर talent acquisition ही करते हो, कहीं ना कहीं से आप shortlisting करते हो. Now, the first question that most of the time I ask, the moment before we started our podcast also, I asked you, how come you're in this profession, right? Now, most of the time I receive an answer, I'm here by chance, not by choice. तो मुझे एक ही चीज लगता है, अगर आप किसी को चॉइस के साथ लेके आओगे ना, वो लाइफ लॉन्ग करता रहेगा. अगर चांस के साथ लेके आओगे ना, वो नहीं करेगा. सो दैट इज द रीजन हाउ इट इग्नाइटेड विद मी एज अ थिंग कि लेट मी स्टार्ट समथिंग वेयर इन आई कैन इग्नाइट द पैशन अमंग द पीपल बेस्ड ऑन सो दैट दे कैन एक्चुअली चूज देयर करियर वाइजली. राइट, कई बार हमारे पास, मैं एचआर में हूँ, कई बार मेरे पास एचआर ऑपरेशन में बच्चे वो होते हैं जिनको एचआर के नाम पे एंगेजमेंट अच्छा लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू पेरोल, व्हेन इट कम्स टू पीएफ, ईएसआईसी, कंप्लायंसेस, वो लोग करते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं सो दैट किसी को दिखाने की कोशिश करें कि भाई ये बार बार गलत हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए. लेकिन उनका चीज़ क्या है, उनको एंगेजमेंट चाहिए, दे वांट द अटेंशन. तो लेट देम बी the part of engagement team rather than into a conventional operation जहाँ वो सिर्फ डेटा के साथ काम करते हैं. So similarly, coming to this question of yours, that how can we bring passion into the profession? Identify it early. अगर आपको नहीं आइडेंटिफाई होता है, there are so many psychometric assessment that you can take and you can understand. और पैशन वो चीज़ है जिसको करने में ना आपको थकावट नहीं होती है. सिंपल, राइट? और कोई जबरदस्ती आपसे कराए तो आपको थकावट हो जाती है. अगर आपको मालूम है आपके करियर में ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में क्या होता है ना, जब आप फ्रेशर और आप कॉलेज से निकले हैं तो आपके पास पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है जॉब में आने का. Agreed. ठीक है. दूसरा, हम कभी बी स्कूल या किसी कॉलेज में जाते हैं तो हम एक ROI अपने माइंड में रखते हैं कि यहाँ से तो मुझे स्टार्टिंग सैलरी करनी ही करनी है बोल के. सो व्हेन वी आर डूइंग दिस स्टार्टिंग सैलरी वाला गेम, उस टाइम पे पैशन हर चीज पीछे हो जाती है, प्रेशर सबसे ज्यादा ऊपर हो जाता है. सो वेरी वैलिड क्वेश्चन सुरभि, हाउ पैशन कैन बी बॉट इनटू अ प्रोफेशन. इट्स वेरी सिंपल. व्हेन यू आर सीइंग इन योर प्रेजेंट जॉब कि ये जॉब में मुझे प्रेशर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ मुझे करने में अपने मन को फोर्स करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप ये समझ जाओ ये आपका पैशन वाला एरिया नहीं है. विज़ अगर आप देखते हो आपके किसी कलीग का काम आपको अच्छा लग रहा है, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ कॉमन डोमेन वेयर वी बोथ ऑफ अस आर देयर, HR डोमेन. Now, HR is all about talent acquisition, retention, and development. Now, for a young chap who has joined in talent acquisition, उनका काम क्या हुआ? आपको बार बार कॉल करना है, यू हैव टू सॉर्ट द CVs, आपको AI के हेल्प से स्क्रीन करना है, कनेक्ट विद द कैंडिडेट्स, एंश्योर दैट देयर इज अ सूटेबिलिटी एंड डूइंग दैट. नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये काम आपको बर्डन लग रहा है, इट कुड बी एनी रीजन, आपको कैंडिडेट्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, या इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा चॉइसेस कर रहे हैं, या आपको आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड नहीं मिल रहा है, ये तो बस वर्किंग चीज़ें हैं. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 to 3 years के बाद जब आपको लगता है कि ये काम आपके ऊपर थोड़ा प्रेशराइज टाइप लग रहा है, एंड यू आर सीइंग टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट रिटेंशन और टैलेंट HR ऑपरेशंस आपका इसमें जा रहा है, तो यू कैन मेक एन इंटरनल जॉब पोस्टिंग आपकी जो कंपनीज में होती है IGP के थ्रू में. यू कैन ट्राई दिस रूट, राइट? सो देन यू विल फाइंड आउट क्या ये सिर्फ इस मोमेंट की थकावट थी या आपका पैशन है जो उस पर आपको कॉल कर रहा है. सिंपल. सिमिलरली अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी चेक कर सकता है कि क्या मैं फुल स्टैक में बनना चाहता हूँ, मैं बैकएंड में जाना चाहता हूँ, UI UX में जाना चाहता हूँ, तो वो अपना देख सकते हैं और स्टेप ओवर कर सकते हैं. एज आई सेड 80,000 to 90,000 आवर्स इन अ लाइफ स्पैन
हम एक ही चीज एक बार में नहीं कर सकते. At times, it becomes mundane. There's boredom, you need change, you need upgradation. But yeah, there's an internal, at times हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं कि हमारी एक interest किस चीज़ में है. I still remember like few years ago, I won't name a renowned engineering college, and I went for training there for campus to corporate, and there were civil engineering students, but they do not knew what's next for them. Why is this state in our country? I don't know about other countries, but students, even after pursuing from high, you've been going to premium B schools. So why is that students, even after doing, paying so much and getting that degrees, they still are not clear about what is next for them? The basic reason, Surbhi, for this is आप जब JEE क्रैक करते हो ना, only the wearer knows where the shoe pinches. जब आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया, the renowned entrance exam is JEE, right? अगर आपके JEE में स्कोर कम आया, आपने VIT दिया, ZIT दिया, ठीक है, आपने थापर इंस्टीट्यूट का दिया, उस टाइम पे आपको प्रेशर होता है, मुझे सिर्फ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए, राइट? लेकिन कई बार क्या होता है, आपको सपोज कीजिए दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपके मार्क्स कम होने की वजह से आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, लेकिन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल गया. आपको क्या लगता है, चलो DTU का तो टैग है, राइट? IIT दिल्ली का तो टैग है, IIT मद्रास का तो टैग है, आप उस टैग के लिए चले जाते हो, ठीक है? अब 2 साल 3 साल, इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टडीज दैट वी अंडरस्टैंड. 4 साल के, एंड चेतन भगत हैज वेरी वेल आर्टिकुलेटेड दिस इन हिज बुक आल्सो. तो हम ये चीज देख सकते हैं कि उस टाइम पे बच्चे का माइंड बहुत क्लियर होता है, मुझे अब इंजीनियरिंग नहीं करनी है बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनीथिंग. देयर आर फ्यू पीपल हु डू इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बट दे डोंट गेट इनटू द इंस्ट्रूमेंटेशन. उनको लगता है जो मुझे पहली जॉब मिल रही है ना, कॉल सेंटर की मिल रही है, BPO की मिल रही है, लेट मी टेक दैट, क्योंकि मुझे अब जॉब की जरूरत है. तो वो स्टेज क्या होता है ना सुरभि, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास 12th के बाद आपको हर चीज ग्रीन 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 दिखनी होती है. जब आप कूदते हो ना कॉलेज में, तब आपको पीयर प्रेशर बाकी सब चीजें दिखती है. और जैसे आप कॉलेज से बाहर आने वाले होते हैं ना, आपकी एज जब 21 होती है, आपको लगता है आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माय पेरेंट्स फॉर द पॉकेट मनी, नाउ आई नीड टू अर्न. तो पहले जो हमें फर्स्ट जॉब मिल जाती है ना, हम उस पर स्टिक हो जाते हैं, हम देखते ही नहीं हमने क्या एजुकेशन कर रखा है. आई विल नॉट नेम अ कंपनी, बट yes, I was associated with a company wherein I was hiring the graduates for a management training job, and believe me, 89% of the graduates are BTech CSC. For not an IT role, not a technology role. It's not a technology. That's a disaster what we're seeing. Yes, but because अभी भी हमारे यहाँ क्रेज BTech CSC का है, बीटेक मैकेनिकल का है. अरे बाबा, मैकेनिकल में वो बंदा जाए जो रियली रियलिस्टिक हो, जो इक्विपमेंट्स के साथ काम करना चाहते हो. बीटेक CSE में वो बंदा जाए जिसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज्यादा हो, जो बाल की खाल निकाल सकता हो, फॉरेंसिक्स में, साइबर सिक्योरिटी में, या एनीथिंग टू डीप में जाए. लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमें कॉलेज में एडमिशन मिला और हम कॉलेज में ले लेते हैं. और आजकल कॉलेजेस भी स्मार्ट हैं, स्कॉलरशिप्स अच्छे देते हैं, तो हमें लगता है यार इस कॉलेज में चला जाए, इसका ब्रांड एम्बेसडर वो है. आप ये तो देखो बच्चे का कहाँ कोर इसमें है. और बच्चे यहाँ पे, मुझे लगता है पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे को फुटस्टेप को स्टैंडली, मतलब फर्मली खड़ा करने की जरूरत है. पापा ये मेरे कैपेबिलिटी के बाहर है. हम वो चीज ईगो पे ले लेते हैं. हम ये बोलेंगे तो हमारे पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, पेरेंट्स को बुरा लगेगा. अरे बाबा, 80,000 आवर्स आपने काम करने, आपके पेरेंट ने नहीं काम करने. और पेरेंट्स को भी यही चीज समझनी चाहिए. इसमें 2 कैटेगरीज में हम डिफाइन करते हैं. इसमें या तो बच्चा रिबेलियस माना जाता है अगर वो एजिटेट करके उस पेरेंट को अपोज करता है. करेक्ट मी, आई एम ओनली स्पीकिंग नॉट फ्रॉम अ करियर काउंसलर और अ कोच पर्सपेक्टिव, बट स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अगर पेरेंट्स को कहीं पर अपोज करते हैं तो पेरेंट्स उनको रिबेलियस समझते हैं. और ऐसे बहुत परसेंटेज बच्चा है जिसको पता ही नहीं है, वो 12th तक बिल्कुल आराम से बैठता है, वो एक स्टेप इन करता है, टेक ग्रेड्स, डूइंग MBA. I feel it very very off that when you come from technology, why are you getting into management? तो ये जो multidisciplinary is one thing, लेकिन पेरेंट्स जो हमारे को एक्सेप्ट नहीं करते. 9th-10th हमारे कंट्री में अभी वो स्टेट नहीं है कि हम बच्चे को बोलें कि अच्छा आप अपनी चॉइस से. हम बोलते हैं आपको पता ही नहीं है. एज अ पेरेंट हम बोलते हैं आपको नहीं पता कि बाहर क्या है, इट्स नॉट ईजी. तो जब बच्चा बोलता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आपकी क्या एडवाइस होगी कि आप अपने घर में ये चीज़ स्टार्ट करिए, बच्चों को ये चीज़ से
इक्विप करिए, ये नॉलेज दीजिए और अपने बच्चों को ट्रस्ट करने का, ऑब्वियसली कीप विजिलेंट ऑन देम, चेक देम, सी व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे जो 10th में हैं, 12th में हैं, वो कैसे आपके एक्सपीरियंस से इस चीज़ को कैसे डिज़ाइन करें, कैसे उस चीज़ को बना पाएं जिस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं, जो हम जाके आज से 7 साल बाद रिग्रेट करते हैं कि हमने क्या कर दिया और आज हम कहाँ खड़े हैं। ओके सर, भी इस केस में मैं पेरेंट्स हो या मतलब अभिभावक हो या बच्चा हो, चाइल्ड हो, मैं उन सबको एक ही बात बोलूँगी कि गेट द ब्लूप्रिंट ऑफ योर करियर डन। ना हाउ कैन यू डू इट? अगर सपोज कीजिए आपके बार बार पेट में दर्द हो रहा है या आपको कहीं लग रहा है कि मुझे कहीं एक टीस सी लग रही है, आप क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट कराते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या आपको जो है B12 कम है या विटामिन डी कम है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको पता चल जाता है ना। साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज सेम लाइक दैट, an assessment, a diagnosis of your personality. Now for example, ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि 9th 10th में बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। He can take very well PCM ले ले, PCB ले ले या भी कॉमर्स का ले ले या आर्ट्स का ले ले। PCM PCB में क्या होता है, आपका हॉराइजन ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी सिचुएशन आ गया कि आप BA अगर ह्यूमैनिटीज़ भी लेते हैं, कॉमर्स भी लेते हैं, तब भी आप स्विच ओवर कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट नोन टू द पीपल, दैट इज़ नंबर 1। क्या आपको मालूम है, आप IIT दिल्ली से अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट से तब भी आप डिग्री ले सकते हैं। आई नो दैट। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, बहुत कम पेरेंट्स को पता होता है। उनको लगता है IIT मतलब टेक्नोलॉजी। नो, देयर आर अदर फील्ड्स विच आर देयर। लिबरल एजुकेशन आ गया, बैंकिंग आ गया है। आप मतलब इन चीज़ों में इतने वास्ट करियर्स हो चुके हैं। और दूसरा, अगर सपोज कीजिए बच्चा 12th के बाद भी, ये बहुत ईजी है डायग्नोस्टिक के लिए। चलो बच्चे को हमने ठोक पीट के बोल दिया तुम्हें PCM लेना है। अब आप जब देख रहे हो 11th में उसके मार्क्स ही नहीं आ पा रहे, उस बेचारे को PCM चलाने के लिए एक केमिस्ट्री का ट्यूशन, एक फिजिक्स का ट्यूशन, मैथ्स का ट्यूशन लेना है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि JEE भी करना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए। वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट आई है जिनके JEE फर्स्ट टर्म में 72 परसेंटाइल मार्क्स है एंड नाउ शी इज एक्सपेक्टिंग 92 परसेंटाइल होंगे, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके पहली बार नहीं आए 30 परसेंटाइल आप ऊपर इकट्ठे, मतलब आप दिन रात भी एक कर लोगे ना तब भी वो जाना मुश्किल है। तो आपको रियलिटी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो उनको ये था कि मैं टेक्नोलॉजी वाले फील्ड्स में जाऊँगी, तो मुझे बहुत क्लियरली उनको बताना पड़ा कि बेटा आप इसमें आप कितना भी कर लो, वहाँ पे आपको अगर नहीं जा पाओगे तो आपके पास फॉल बैक के लिए क्वेश्चन होना चाहिए। सो इमीडिएटली CUET के एग्जाम्स के लिए या NFSU के जो NFAT के लिए, उन सब के लिए उनको करवाया ताकि बच्चा जो है फॉल बैक भी करे तो थोड़ा सा ही नीचे गिरे, बिल्कुल ज़मीन पे ना नीचे गिर जाए। तो वो फॉल बैक वाले ऑप्शंस हमारे पास रहने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल के बाद बच्चा एक टेक्निकल फील्ड में ही जाएगा। आजकल बच्चे नॉन वॉइस और वॉइस वाले प्रोसेस में भी चले जाते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल ग्रेजुएट जो कि इसमें वो जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें बच्चे को बतानी ज़रूरी होती है और पेरेंट्स को भी रियलिटी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे स्कूल्स में ये करियर काउंसलिंग, एक तो करियर काउंसलिंग कोचिंग होता है जिसमें आप साइकोमेट्रिक कर लेते हैं और आप बहुत सारे और भी टेस्ट करते हैं जिसमें एप्टीट्यूड ये सब भी होता है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट में वी एक्चुअली मेजर द पर्सनालिटी ऑफ एग्जैक्टली MBTI है ना, उसमें हम उनकी स्ट्रेंथ्स को मेजर करते हैं, प्लस एप्टीट्यूड भी करना पड़ता है क्योंकि एप्टीट्यूड इज नथिंग बट एन इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस 2 तरीके का होता है, एक फ्लूइड होता है, एक क्रिस्टलाइज्ड होता है। फ्लूइड इज समथिंग दैट यू हैव गॉट इट फ्रॉम जेनेटिक्स। क्रिस्टलाइज्ड होता है जो आपने एक्वायर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, आपने देखा नहीं स्टेप, आपका पैर मुड़ गया। नेक्स्ट टाइम जब आप उतरेंगे ना, आप डबल केयरफुल होंगे। दिस इज योर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो चीज है। तो हम क्या करते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस पे देखते हैं कि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है। और बेसिक लेवल्स होते हैं एप्टीट्यूड में, वर्बल, नॉन लॉजिकल या न्यूमेरिकल। आप देखो बच्चे का किस तरह से है एंड कंबाइन इट विद द ऑक्यूपेशनल स्ट्रेंथ एंड बेस्ड ऑन दैट गिव अ मिक्सचर ऑफ द राइट करियर चॉइसेस व्हाट अ स्टूडेंट शुड डू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक आई गॉट अ स्टूडेंट who has done PCM और वो जो है लॉ करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा JEE मेरे बस की बात नहीं है, मेरी मदर एडवोकेट है तो मैं लॉ में जाना चाहता हूँ। लेकिन बच्चे की पर्सनालिटी इज मोर ऑन ए इन्वेस्टिगेटिव थिंग।
राइट. हाँ, द चाइल्ड इज मोर सोशल, मोर इन्वेस्टिगेटिव. तो उस हिसाब से उनकी कॉम्बिनेशंस देखिए बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है लॉ वाले के अंदर आपको there are where you need to have a strong personality and the child was having a subtle personality. अब मैं उसको नहीं बोल सकती तुम जोनर चेंज कर लो, right? So we have to mold them as per their things. And when you give a written report, not a handwritten or typed report, which is backed by the science of their occupation, the child will, when they will see, they will understand that. Correct. That is important. Correct. So basically, how much, and how about global education, Sunanda, which has been taking a hilt in our country? You know, every third student child we see 12th kiya, 11th mein portfolio banaya, and then they set their wings to fly to an international destination to their education. What is your take on to it? Okay, if parents can afford a student to go overseas and get the studies done, then it's absolutely okay. That is number one. Number two, हमारे एक myth है. मिथ क्या है? बाहर जाएगा तो बच्चा अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, आप इंडिया में इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, इससे अच्छा बाहर पे पैसा खर्चा कर दो. लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो बच्चा बाहर जो जाएगा उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है. मतलब कई बार बच्चों को लगता है कि हम बाहर जाके कुछ कर लेंगे. एंड आई हैव अ वेरी रियल केस ऑफ माई वन ऑफ माई स्टूडेंट हु इज डूइंग ह्यूमैनिटीज एंड शी वुड लाइक टू गो अब्रॉड जस्ट बिकॉज उसको लगता है मैं घर से बाहर जाऊंगी तो आई हैव मोर विंग्स. बट बच्चे को जब खुद बच्चा एक छोटे से डिसिप्लिन में नहीं कर पा रहा है, मतलब वो एक छोटे छोटे मार्क्स होते हैं ना जो आपको मैनेज करना पड़ता है. 12th में आप धक्का दे के आप निकल रहे हो तो आप कैसे आप बाहर जाके सर्वाइव करोगे? सर्वाइवल डिफिशिएंसीज हो जाएंगी ना, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी. दूसरा, बाहर के देश में आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा. आइदर आपके पास बैंक बैलेंस वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए तब आप जाओ. अब बच्चों को कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बाहर की कंट्री में पढ़ाया तो इट्स अ फैड. मेरा बच्चा जर्मनी पढ़ रहा है, स्विस में पढ़ रहा है, यूएस में पढ़ रहा है, यूके में पढ़ रहा है, इट्स ऑल गुड. मेरी बहन का बच्चा पढ़ रहा है तो मैं भी इसको पढ़ाऊंगा. वो हम कॉम्पिटिशन में आते हैं. लेकिन अगेन कमिंग बैक, आपका पेट कितना है, आपका एपेटाइट कितना है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. येस, ओवरसीज करियर्स आर रियली गुड in case if you're getting into a elite colleges, but if you're getting into the normal colleges, then it is better that आप इंडिया में शेर बन के घूमो रादर वहाँ पे बिल्ली बन के घूमो. करेक्ट, वेरी वेरी वेल सेड. कुछ ऐसे सेल्फ असेसमेंट टूल्स हैं जो घर पे हम शुरू कर सकते हैं अगर मेरा बच्चा 8th-9th में है, जो आप सजेस्ट कर सकते हैं. यू बीन राइटिंग दिस बुक एज वेल, करियर बीकन. तो ऐसे कुछ सेल्फ असेसमेंट टूल्स जो आप पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं या बच्चों को बोल सकते हैं कि आप 9th के बाद या 10th के बाद मेक दिस एज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ. See, if you're going for any tool, there are multiple tools which are available. No, advised by you. Okay, I don't advise कि जाके मुफ्त का कोई भी चीज करो. रीजन भी, I agree. अगर आपने ब्लड टेस्ट करा भी लिया, आपको ब्लड टेस्ट पढ़ना नहीं आया, या आपने गलत डायग्नोस करके दवाइयाँ शुरू कर दी, तो आप अपनी हेल्थ पे लेके आओगे. एंड करियर हेल्थ तो चलो ये है कि आप डॉक्टर के पास गए, नर्स गए, आईसीयू में रह के कुछ करा सकते हो. लेकिन करियर में एक बार डेंट आ गया या करियर में एक बार आपने अर्ली एज पे आ गया तो बच्चे का जो मनोबल है ना वो बहुत नीचे चला जाता है. तो वो मतलब आई वुड नॉट एडवाइज. yes, yet there are multiple tools which are available. आप गूगल में डालोगे I would like to do a free psychometric assessment, वो हो जाएगा. थॉमस असेसमेंट हो जाएगा, डिस्क का हो जाएगा, RAPD का हो जाएगा, इवन हॉलैंड का भी हो जाएगा. बट इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड इट प्रॉपर्ली, then it's of no use. Correct. So what you're paying is, you're not paying for that assessment, you're paying for the diagnosis that the person is going to. Correct. The prognosis is important. Very well said. Passion, profession, हमने सब बात कर लिया. Schools और colleges का क्या responsibility होना चाहिए बच्चे का career shape करने में and having career activity regularly as a part of it? Okay, Surbhi, I am associated with Niti Aayog as a regional mentor of change. Now, government has taken this step ever since, from last 8 years, wherein there is something called Atal Tinkering Labs which are there. Now, Atal Tinkering Lab में क्या होता है, वो बचपन से ही बच्चों के स्कूल में जब ATL labs बनते हैं ना, 3D printing, all the technology, modern technologies को implement किया गया है. तो आज के दिन में जितने भी schools हैं, may it be private, may it be government, नवोदया हो गए या आपके नगर निगम के स्कूल्स हो गए या प्राइवेट स्कूल्स हो गए, everyone is
is working 360 degrees on the career development of the kids. Now, if you will see, because I am from the academic background where I see these schools, they are really doing great things so that these students can be competitive from the beginning. It could be आपका कोई भी मैराथन हो, टेकाथॉन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे बच्चों को डालते हैं ताकि स्टेम एजुकेशन में आ जाए. प्लस कितने ही आपके ओलंपियाड्स चल रहे होते हैं ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एज दिया जाए. तो स्कूल्स आर डूइंग रियली गुड as of now in these things, and they are balancing their academics plus the activities. Now it is up to the students who have to come into the things. मैं ये नहीं कहती आप बहुत सारे क्लब्स में चले जाओ, बहुत सारी चीज़ों में आप बढ़ जाओ, लेकिन आप ये देखो आपको कौन सा है. जैसे MUN है, ठीक है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस का हो गया, आपका ओलंपियाड्स हो गया जो होते हैं, कितने ही टेकाथॉन्स हो गए, कितने ही जगह ऐसे हैं जहां आपको जाके ऐसे लिखना है या कहीं पे जाके आपको एक्सटेम्पो बोलना है, डिबेट है. द मल्टीपल थिंग्स व्हिच द स्कूल्स आर डूइंग एंड दे आर डूइंग द राइट थिंग. नाउ कमिंग टू द college, you cannot expect that they will be working on the, you know, पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज स्कूल वो करके लेके आता है. अब कॉलेज क्या प्रिपेयर करता है, लाइक एनी बी स्कूल, एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेज, what they are doing is they're getting, apart from their lecturers, they're getting the guest faculties, they're doing the conclave, HR conclave ho gaya, IT conclave ho gaya, wherein the industry leaders are coming and they are talking face to face to the students. Correct. Right? So when supposingly I go to any B school where their orientation is taking place, apart from their college lectures, if an external person is sharing their details, they are sharing what is happening in the real world. So today colleges and schools, they are doing extremely good work so that they can balance it out and they can bring a child with a holistic thing. Perfect. And they are preparing them for the future. आजकल तो कुछ schools कॉर्पोरेट्स में जाके बोलते हैं हमारे बच्चों को इंटर्नशिप दो, सो दैट दे अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, इफ आई वर्क इन अ मोबिलिटी इंडस्ट्री, कि मोबिलिटी इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, सो दैट चाइल्ड कैन डेवलप दैट माइंडसेट कैन बी डेवलप. परफेक्ट. तो हमारे पेरेंट्स और आपने बच्चों के लिए तो यू गिवन एज अ पेरेंट, एज अ मेंटर, एज अ करियर कोच, what is your one step to students who are coming out of class 12 to step into the genre of making their career, taking it ahead? One line to close it. How can we do not get into the rat race? आप अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए और उसके बेसिस पे जो है आप अपने करियर का चॉइस कीजिए. आपके पास एक्सपर्ट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. Google will help you. There are people who are free mentors who are available. You can get in touch with them and get a right advice. Do not get into a pressure कि मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मुझे भी ये करना है. आपका डेस्टिनी ऑलरेडी डिफाइंड है. द ओनली थिंग इज, वो जैसे होता है ना, आपको पत्थर मार मार के वो रास्ता बनाना है, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा. सुनंदा, एक मिसकंसेप्शन भी करियर कोच के पास ना जाने का, क्या मिसकंसेप्शन है? ओवर द इयर्स यू मैग्निफाइंगली वर्क विद सो मेनी स्टूडेंट्स एंड you know had an association with parents. ऐसा क्या मिसकंसेप्शन है जो पेरेंट्स को रोकता है एक राइट एडवाइस, एक राइट बंदे के पास ले जाने के लिए? सुरभि, एक चीज जो पेरेंट्स को रोकता है ना, उनको लगता है यार वो क्या ही बता लेंगे, हमें इतनी सारी चीजें मालूम है. ठीक है, हम किसी कॉलेज में चले जाएंगे तो वहाँ का काउंसलर फ्री में ही बता देगा, हम क्यों ये 4-5 हज़ार हम खर्चा करें. लाइक आई चार्ज 60 रुपीज़ पर मिनट, राइट, मैक्सिमम होता है 3600 आपका पर मंथ, पर आवर पड़ जाएगा आपको. वो लोगों को लगता है कि यार ये अमाउंट हम बचा लें, हम क्यों ना स्कूल में जो करियर काउंसलर है उससे कर लें, या हम किसी और से एडवाइस ले लें, उनकी बुक्स को पढ़ के हम करा लें. ऐसा नहीं होता. आपको रेडीमेड बहुत सारे, मतलब कई बुक्स मिलती हैं जो करियर के बारे में बताती है. पीसीएम के बाद ये होता है, पीसीबी के बाद ये होता है, बीबीएम, अगर आपने ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स लिया तो क्या हुआ, ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स लिया तो क्या हुआ, या बीकॉम में कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, इकोनॉमिक्स लिया तो क्या हुआ. ये आपको लिटरेचर हर जगह पता चल जाएगा, लेकिन वो जो चीज़ आपकी बच्चे की स्ट्रेंथ के हिसाब से कैसे बताना है, वो आपका करियर काउंसलर ही करता है. और कई बार पेरेंट्स आके बताते हैं कि हमें बच्चे को इधर लेके आना, आप बस एंडोर्स कर दो. ठीक है, वो भी गलत है. एंडोर्समेंट नहीं चाहिए आपको करियर काउंसलर से. यू नीड टू एक्चुअली स्पेंड योर टाइम एंड अंडरस्टैंड कि क्या बच्चे के लिए अच्छा है. Correct. It's very right to take the right step at the right time before we mislead our child's career and jeopardize their careers. So we end this conversation here. It was very valuable. I'm sure 10th and 12th
एक अपकमिंग अभी बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, there is plethora of things coming up and we cannot consume everything what's coming up. To segregate that knowledge, what is for you into it, that is the specificity now we work on. So career coaching, career counseling, career mentoring is what gives career positivity.